बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Simple and Smart English with Mazhar. Today we are going to learn use of can. आज के हम लेक्चर में सीखने जा रहे हैं can का इस्तेमाल। ये पहला मॉडल वर्ब जिसको हम आज सीखने जा रहे हैं। होप सो can वर्ड आपने सुना होगा अपनी लाइफ में, कई दफ़ा सुना होगा, इसको इस्तेमाल भी किया होगा। आज आपको इसका रियल कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि कैन का इस्तेमाल हम कब और कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी कि कैसे करते हैं। सबसे पहले कैन इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस। कैन इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस व्हाट। कैन किस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सी हियर एबिलिटी, इनएबिलिटी। एबिलिटी और इनएबिलिटी से मेरा मुराद क्या है कि अगर आपके पास कोई काम करने की सलाहियत है, आपके पास वो आर्ट है, आप उस काबिल हैं, कर सकते हैं वो काम, तो फिर क्या होगा, वो आपके पास एक पावर होगी। पावर, आपके पास वो एबिलिटी होगी। कैसे? आप कहते हो आई कैन ड्राइव अ कार। आई कैन drive a car. I can drive a car. When you have such an ability, so it means कि you can do this job. आप ये काम कर सकते हो। कौन सा? I can drive a car. Right? It means you have an ability to do this job. Later on, after this, और अब हम देखते हैं कि इन एबिलिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। एक वो काम जो आप कर सकते हैं, एक वो काम जो आप नहीं कर सकते, उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सिर्फ यहाँ पे आप लिख देंगे आई कांट या आई कैंट, आई कैन नॉट। राइट? आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, आई कांट ड्राइव अ कार। राइट? सो इट मीन्स कि द थिंग विच यू कैन डू, you have to express in positive way. I can drive a car, but the thing which you can't do, you don't have any ability to do that particular work, that particular action. So if you can't do that job, so you have to mention here I can drive a car. Right after that, I can't drive a car. So this is what which you have to keep in your mind. When you can do something, you have to show I can do this thing. If you can't do anything, so you have to mention here I can't do this thing. Right? So after that, I'm going to move towards possibility and impossibility. Possibility and impossibility, although it is a bit informal, but you have to consider it. How can we make the use of can to express possibility and impossibility? अब क्या है? If I say it can rain today, it can rain today. If I say it can rain today, it means there is possibility, there is a chance है, possibility है। किस चीज़ की? बारिश होने की। It can rain today, आज बारिश हो सकती है, चांस है। It can rain. After that, if there is no possibility, then what can we say? It can't rain today. It can't rain today. So see, one example was of an ability, other was the example of a possibility. Same is the case. To express an ability, you have to change the sentence structure. You have to move towards negative sentence structure. So here is the same case when you are talking about the impossibility. It can rain today, it can't rain today. Or in American, it is said it can't, but in British, it is said can't. Right? So this is what you have to keep in your mind while understanding these concepts. Right? After that, I am going to move towards habit and nature. Habit and nature. हैबिट एंड नेचर। आपने किसी की आदत देखनी है, आपने किसी की नेचर देखनी है, तो आप बंदे को देखकर, तो नेचर और हैबिट को देखने के लिए हम एक बंदा देखते हैं,
और पता चल जाता है यार ये बंदा, इसका मिजाज किस तरह का है, इसकी नेचर क्या है, ये किस तरह की इसकी हैबिट्स हैं, राइट। हम बंदे को देख के कह सकते हैं ये काम कर सकता है और ये काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन कैन नॉट harm anybody, cannot harm anybody. So you have to see here what an honest person, an honest person cannot harm anybody. So it means कि when we have talked about एन ऑनेस्ट पर्सन, जब हमारी मुलाकात किससे होगी, एक ऑनेस्ट पर्सन, हमें पता है ये ईमानदार आदमी है, जब हमारी बात उसके साथ हो गई तो हमें पता चला कि जो ईमानदार बंदा होता है वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सो इट मीन्स एन ऑनेस्ट पर्सन कैन नॉट हार्म एनीबॉडी, राइट। और दूसरी एग्जांपल, बहुत ज़्यादा हमें ऐसे लोगों से वास्ता पड़ जाता है जिनको देखते ही पता चल जाता है कि ये लोगों का नुकसान कर सकते हैं, ये लोगों का नुकसान कर सकते हैं। कैसे हमें पता चलता है कि एक डिसीटफुल पर्सन है, एक कौन है, डिसीटफुल, चीटर, तो वो क्या कर सकता है, कैन हार्म अदर्स, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अगर एक बंदा चीटर है, ही कैन चीट अदर्स, बट एक बंदा ईमानदार है तो ही कैंट चीट अदर्स। तो हम अगर नेचर देखें तो नेचर से हमें पता चला कि एक बंदे की नेचर है एन ऑनेस्ट पर्सन कैन नॉट हार्म एनीबॉडी, बट ऑन द अदर हैंड अ डिसीटफुल पर्सन, एक धोखेबाज जो है, कैन हार्म अदर्स, वो किसी को भी, दूसरों को हार्म कर सकता है, राइट। अब हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, पोलाइट एक्सप्रेशंस की तरफ। पोलाइट एक्सप्रेशंस, अब पोलाइट एक्सप्रेशन से मुराद क्या है कि कैन को पोलाइटली किस तरह यूज़ करना है आपने। अक्सर क्या होता है, हम कैन को बड़ा सख्त लफ्ज़ समझते हैं और इतना सख्त समझते हैं, कहते नहीं इसके मुतबादिल और वर्ड्स हैं, आप वो यूज़ करो कैन की जगह। लेकिन अगर आपको कैन का इस्तेमाल करना पड़ गया तो कैसे इसको पोलाइटली करेंगे आप। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कैन आई टेक दिस पेन, कैन आई टेक दिस पेन, आगे मैं लगा दूंगा प्लीज़, कैन आई टेक दिस पेन प्लीज़, कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़, कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़। तो ये वो एक्सप्रेशंस हैं, आप प्लीज़ लगाकर इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे मूव कर रहा हूँ मैं किसकी तरफ, आपकी पोलाइट एक्सप्रेशंस के बाद आपकी रिक्वेस्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो, क्या करते हो, आप कहते हो कि कैन यू प्लीज़ या कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट प्लीज़, राइट। सो दीज आर द पोलाइट एक्सप्रेशंस ऑफ कैन। उसके बाद मैं मूव कर रहा हूँ किसकी तरफ, इनफॉर्मल परमिशन। जब आप फॉर्मल परमिशन नहीं ले रहे, इनफॉर्मल परमिशन की तरफ जा रहे हैं, तो उस वक्त आप क्या कहते हैं, कैन आई सिट ऑन दैट चेयर, कैन आई सिट ऑन दैट चेयर, क्या मैं उस कुर्सी पर बैठ सकता हूँ। अब ये है तो परमिशन है लेकिन इनफॉर्मल है। और इसी के साथ आगे हम मूव कर रहे हैं, कैन का डिटेल में यूजेज क्या है, कैन को एक्टिव फॉर्म में और कैन को पैसिव फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं हम, अब देखें कि हम किस तरफ मूव हो रहे हैं। कैन का यूजेज सीखना है कि कैन क्या है। अब देखें कैन का सबसे पहले हम वो यूजेज सीखने जा रहे हैं जिसमें कैन का एक्टिव में भी इस्तेमाल होता है और कैन का पैसिव में भी इस्तेमाल होता है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिव, द यूज ऑफ कैन, एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, पैसिव। अब सबसे पहले हमने इसकी ये बेस सीखनी है कि कैन का पहला फंक्शन क्या है। अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब एक्टिव और पैसिव में फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव में हमारा फोकस सब्जेक्ट के ऊपर होता है और पैसिव में हमारा फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, जो एक्शन रिसीव करने वाला होता है।
एक्टिव में हमारा कौन सा है, जो सेंडर है, जो एक्शन सेंड कर रहा है, इसके ऊपर फोकस है। और पैसिव में हमारा फोकस किसके ऊपर होता है, जो एक्शन रिसीव कर रहा होता है, जिसकी तरफ एक्शन ट्रांसफर हो रहा होता है। अब ये चीज़ आपने क्या करनी है, 100% समझने की कोशिश करनी है कि एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है इसका और पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ, जिस तरह हमने लिखा था आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू, और आई कैन टीच यू, और उसके बाद इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू कैन बी taught, you can be taught by me। ये एक एग्जाम्पल लिखने का मकसद जो था बेसिकली ये था कि I can teach you, you can be taught। अब हमने देखना ये है कि समझाने के लिए कि एक्टिव में हमारा फोकस किसके ऊपर रहा, पढ़ाने वाले के ऊपर, जो एक्शन सेंडर है, जो पढ़ा रहा है। आई कैन टीच यू, उसके पास ये पावर है, एबिलिटी है, ही कैन टीच यू। लेकिन जब हमने कहा इसको पैसिव में कन्वर्ट किया तो हमने देखना है कि पढ़ाता किसको है, आई कैन टीच यू, आपको। लेकिन जब आपको पढ़ाया जाता है, आपके ऊपर जोर दिया जाएगा, तो इट मीन्स कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो जब उसके ऊपर जोर दिया जाएगा तो पैसिव में उसको हम पहले लिख लेंगे, यू कैन बी टॉट बाय। उसके बाद इधर जब सब्जेक्टिव इसका केस होता है तो हम क्या करते हैं, आई लिखते हैं। लेकिन जब इसको पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं, आई किस में ट्रांसफर हो जाता है, मी में। अब ये चीज़ आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है, नंबर 1। नंबर 2 कि जब हम इसका एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे हम V1 लिखेंगे, जब इसका पैसिव स्ट्रक्चर लिखेंगे हम V3 लिखेंगे। कैन के बाद एक्शन वर्ब V1, कैन बी के बाद कौन सी वर्ब आ जाएगा, एक्शन थर्ड फॉर्म, यानी कि V3 आ जाएगी। अब देखें इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं। अगर आपसे पूछे व्हाट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि जिसके ऊपर आप एक सेंटेंस जनरेट करते हो, सेंटेंस क्रिएट करते हो, सेंटेंस बनाते हो। सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें सेंटेंस जनरेट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है तो सेंटेंस मीनिंग नहीं देगा। आपने ये हमेशा याद रखना है कि सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस जितने भी होते हैं वो मीनिंग रखते हैं। मीनिंग किस वजह से रखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की वजह से रखते हैं। वर्ब अगर होगा, एक्शन होगा, वो सेंटेंस मीनिंग देगा। अगर एक्शन नहीं होगा, एक्शन बीच में से मिसिंग होगा, तो वो वर्ब आपको कभी भी मीनिंग नहीं देगा। लेट्स स्टार्ट कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, यूज ऑफ कैन। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ जब हम मूव करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। यू हैव टू राइट फर्स्ट सब्जेक्ट, सून आफ्टर सब्जेक्ट यू हैव टू राइट मॉडल कैन, राइट आफ्टर कैन यू हैव टू यूज V1, after that you have to write object, right? This is what which you have to keep in your mind while writing positive sentence structure of can, subject, can, V1 and object. Subject means the one who performs an action. Can is a modal verb. Apart from this V1, that is called basically action. After that object, the one who receives an action. So this is what which you have to keep in your mind. ये चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है, राइट? आगे मूव करता हूँ, इसका पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा। पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कैन बी। एक्टिव में सिर्फ कैन और पैसिव में क्या हो जाएगा, कैन बी। आफ्टर दैट you have to write V3, then you have to write by. After that subject, subject in a sense objective case of subject। objective case of subject से मुराद क्या है, आई जो है वो मी में हो जाएगा,
ही हिम में हो जाएगा, शी हर में हो जाएगा, एटसेट्रा, राइट। उसके बाद जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए हमने क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए हमने सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने लिखना है कैन नॉट, उसके बाद हमने V1 और उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और जब हम पैसिव की तरफ मूव करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप कैन नॉट बी, आफ्टर दैट V1, देन बाय, आफ्टर दैट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का लाजमी याद रखिएगा कि हमने कौन सी चीज़ यूज़ करनी है ऑब्जेक्टिव केस, पैसिव में, राइट। उसके बाद जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैन, इनकी मॉडल जो है वो इन द बिगनिंग आ जाएगा। जिस तरह हमने टेंसेस में दूसरी तीसरी चीज़ों में पढ़ते हैं कि क्या होता है कि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस, राइट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मॉडल इन द बिगनिंग में आ जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे V1 और उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क डालना होगा। इसी तरह जब इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कैन, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे बी के बाद V, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है ऊपर, अगर आप देखें तो यहाँ पे V3 आएगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे V3। अगर आप लेक्चर गौर से सुन रहे थे तो फिर आपको ये चीज़ पता चल जानी चाहिए थी। अगर आपने गौर से नहीं सुना तो ये चीज़ आपकी गलत हो सकती है। यही चीज़ होती है कि जब भी आपने सीखना होता है सही तरीके से तो आपका पूरी जो तवज्जो है, आपकी जो पूरी की पूरी कंसंट्रेशन है वो किसके ऊपर होती है? लेक्चर के ऊपर, कि कहाँ पे कौन सी चीज़ किस तरह मूव कर रही है। हमने डिस्कस किया था कि V3 यूज़ करेंगे। अब देखें आपके सामने अभी मैंने उसको क्या किया, रब किया, रिमूव किया, किसको? V3 की जगह V1 लिखा हुआ था। अभी उम्मीद है कि आने वाली चीज़ों को आप गौर से देखते जाएंगे। कैन, ऑब्जेक्ट बी, उसके बाद V3, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, राइट। आफ्टर दैट व्हेन वी विल मूव दिस सेंटेंस फ्रॉम positive to negative, already done. Then interrogative, now it's negative plus interrogative, negative plus interrogative in the beginning of sentence. Actually if you talk about written communication, in written what happens that can is written, then subject, then not. But in modern English, in spoken English, this expression is used, this expression is used cannot in the beginning of sentence, then subject, after this V1, then object. If you talk about passive, then it will be can't, then object, then be, after that V3, then by, after this subject, right. So this is what which you have to keep in your mind while transferring sentences. If I talk about this one, so as I mentioned earlier, I can teach you, I can teach you. The word I can teach you, if you talk about I, it is subject, I. After that can is modal, then teach is V1, you is subject. So I can teach you. When you will transfer it into passive, what will you mention? You will be written in the beginning of sentence. You can be, what is the third form of teach? Taught. So you can be taught by me. This is what which you have to keep in your mind. Now I am going to write some examples, so you have to focus on those examples. अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ और उसके बाद कुछ आपको टास्क दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल क्या है बेसिकली, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जब इसको पैसिव में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू कैन बी हेल्प्ड बाय
मी, यू कैन बी हेल्प बाय मी। आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लिया है और सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। आई कैन हेल्प यू, उसके बाद यू कैन बी हेल्प बाय मी। इसी तरह जब हम इसका क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैंट, यू कैन प्रोनाउंस इट एज कैंट और कांट। कैंट इन अमेरिकन, कांट इन ब्रिटिश, राइट। आई कैंट or I can't help you. So it means here you have an ability to help someone, but here you don't have an ability to someone. So it means I can help you, then I can't help you. If you talk about it's in a passive, so what will happen? You can be helped. You can be helped by me, right? So after that, one thing you must remember in your mind, must keep this thing in your mind. What is that? वो एक चीज़ आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है, जहन में आपने याद रखनी है, जहन में आपने उसको जहन नशीन रखना है कि वो क्या चीज़ है जो आपने जहन में रखनी है। कि अगर एक्टिव है, पैसिव है, सेंटेंस स्ट्रक्चर तो बदल देंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा। अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर बदलते हैं, मीनिंग बदलते हैं, इट मीन्स देयर इज गड़बड़। फिर कोई गड़बड़ हो गई है, आपके सेंटेंसेस बना दिए हैं लेकिन मीनिंगलेस हैं। आपने ये जहन में रखना है कि एक सेंटेंस है जिसका आपने एक्टिव बनाया है, उसको मूव कर रहे हो पैसिव में, तो आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होता। अब देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। तो इधर क्या हो जाएगा, कैन यू बी हेल्प्ड, कैन यू बी हेल्प्ड बाय मी, राइट। सो हियर इट विल बी कांट आई हेल्प यू, और इधर क्या हो जाएगा, कांट यू बी हेल्प्ड बाय मी। आपने ये चीज़ें सेंटेंस स्ट्रक्चर में सीखी हैं। आपने क्या करना है कि एक चीज़ आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है, फिर उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई करनी है। आया कि पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जो था उसके ऊपर ये अप्लाई होता है, नेगेटिव में ये अप्लाई होता है, इंटेरोगेटिव में ये अप्लाई होता है, और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में ये अप्लाई होता है। अगर ये अप्लाई होते हैं इट मीन्स कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है और जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो मीनिंगफुल होगा, मीनिंगलेस नहीं होगा। अब कुछ चीज़ें मैं फिक्रे सेंटेंसेस बोल देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ जाए तो कैसे। मैं कहता हूँ मैं पंखे को छू सकता हूँ, मैं पंखे को छू सकता हूँ। मैं कहता हूँ मैं बाहर अकेला जा सकता हूँ, मैं बाहर अकेला जा सकता हूँ। मैं कहता हूँ मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ वो मेरा मोबाइल चोरी कर सकता है, तो उस वक्त मेरे जहन में क्या होगा कि जो मेरा मोबाइल चोरी कर सकता है तो वो डेफिनेटली खुद सोच रहे हैं उस बंदे का इमेज मेरे जहन में क्या होगा और आपके जहन में भी क्या होगा। वो मेरी मदद कर सकता है, जब मैं कहूँगा वो मेरी मदद कर सकता है तो मेरे जहन में उसका इमेज क्या होगा कि वो मेरी मदद कर सकता है, एक पॉजिटिव इमेज होगा। जब वो मैं कोई नेगेटिव को पेश करूँगा कोई किसी का इमेज, तो वो मेरा मोबाइल चोरी कर सकता है, इट मीन्स कि मेरे जहन में उसका इमेज जो है वो नेगेटिव है। वो मेरी मदद कर सकता है तो इमेज क्या है, पॉजिटिव है। और आप भी ये जहन में रखें कि जब लेक्चर सुने, लेक्चर को गौर से सुने और इसके ऊपर वर्कआउट करें। और कोई भी चीज़ आपको कैन की इस यूज़र में अगर आपको समझ नहीं आई तो वो आपको इंशाल्लाह आपको कमेंट्स बॉक्स में देखा जाएगा। आप कमेंट्स कैसे करते हैं और उसके ऊपर मज़ीद लेक्चर्स भी आपको दिए जा सकते हैं। होप सो अब तक आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, SSE विद मज़र, SSE विद मज़र। और उसके बाद आपने लेक्चर भी जो आज से पहले अपलोड कर दिए गए हैं वो आपने सुने होंगे, आपने सीखा होगा। और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी आपके कमेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। और होप सो कि आज का लेक्चर यहाँ तक इसको ख़त्म करता हूँ और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मॉडल के साथ होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।